Hi everyone, good evening, Jai Hind. So welcome to another session of methods and approaches wherein we're going to discuss one more technique of writing things in RMO or any descriptive examination. And बहुत बार ऐसा होता है कि that the answer is pretty much visible to us. And it has happened in RMO 2024, 2023 problems also that a lot of students have been able to find the answer but not able to justify them. Right, so we'll be seeing one such solution, one such problem in today, and we'll try to feel, and we'll try to also see how do we justify the answer. So that is the most important part. And writing answer sometimes will only fetch you 1 to 2 marks out of 17, but it is the justification which is more important, and we'll see that in today's session. Right, so this is my Telegram ID. Those who want to get in touch, they can at this Telegram ID at the rate Abhay86 Mahajan. And so again, the session name is obvious answer, but proving is difficult. How do we do that in most of the cases, right? So it happened in one of the problems in 2024 RMO also, one of the problems in 2023 RMO also. A lot of students were able to find the answer. They came back. They said that we have been able to do this problem, but when they saw the answers, the marks, they literally scored 0, right? So let's start. So this is the problem. The problem is there are 6 musicians participating in a music festival. At each concert, some of them play music and the others listen. What is the minimal number of concerts so that each musician listens to the others? तो पहले तो इसको फील करना बहुत जरूरी है, राइट? सो एक म्यूजिक फेस्टिवल है, देयर आर 6 म्यूजिशियंस एंड लेट्स से दे ऑल नो ईच अदर एंड दे वांट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? सो हाउ डू दे लर्न? सो इट इज गिवन दैट एट ईच कॉन्सर्ट सम ऑफ देम प्ले म्यूजिक, some of them play music while others listen. ठीक है? So अगर let's say musicians are A, B, C, D, E, F. Let's say if A is playing music, the others might listen. Or if A and B play music, then others, 4 of them, C, D, E, F are listening. So we have to find the minimal number of concerts so that each musician is able to listen to all others. कि अगर if A को सब लोग सुन ले, बाकी 5 सुन ले, B को भी बाकी 5 सुन ले, C को भी बाकी 5 सुन ले, and so on. Right, so each musician is able to listen to all of this. So finding answer to this problem is not difficult. It is very easy to find the answer to the problem, but it is the proving part that why is it minimal that is going to get you marks. Okay, so let us try to feel this. Let the musician's name be A, B, C, D, E, F. तो feel करते हैं थोड़ा सा. तो सबसे simple case तो ये होगा कि यार A is singing or A is performing and B, C, D, E, F other 5 are listening. In the second case, B is performing, A, C, D, E, F is listening, C is performing, others 5 are listening. So यहाँ पे 6 concerts हो गए and यहाँ पर we have ensured that everyone has listened to every singer. It's a very basic case, very trivial case. This gives you 6 concerts. But again, the problem is find the minimum number of concerts. इसको उल्टा कर लेते हैं. A, B, C, D, E अगर sing कर रहे हैं, F is listening, A, B, C, D, F, A, B, C, D, F is singing, E is listening, and so on. A, B, C, ठीक है? तो यहाँ पे लिसन वाले, यहाँ पे सिंगिंग वाले एक है, यहाँ पे लिसनिंग वाले एक है, तो सेम केस है. तो यहाँ से ये फील आ गया कि यार यहाँ पर अगर मैं 1 करता हूँ, यहाँ पे 4 करता हूँ, यहाँ पे 4 करता हूँ, यहाँ पर 1 करता हूँ, यहाँ 5 करता हूँ, इट इज द सेम थिंग, ठीक है? बट कैन वी डू बेटर देन दिस? कैसे बेटर कर सकते हैं? सो लेट अस ट्राई टू डू 2-2 2 देखते हैं कि क्या नंबर कम हो रहा है. सो अगर मैं ए बी, इफ आई मेक ए बी सिंग एंड सी डी ई एफ आर लिसनिंग, सो ए बी का सॉन्ग सी डी ई एफ ने सुन लिया. लाइकवाइज सी डी का सॉन्ग ए बी ई एफ ने सुन लिया. ई एफ का सॉन्ग ए बी सी डी ने सुन लिया. ठीक है, तो अभी बहुत सारी सिंगिंग और लिसनिंग हो गई. क्या क्या मिसिंग है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट. ए बी का सॉन्ग सी डी ई एफ ने सुन लिया, मतलब ए का सॉन्ग बी ने नहीं सुना, बी का सॉन्ग ए ने नहीं सुना अभी तक, वो हमें एडजस्ट करना है. सी का सॉन्ग डी ने नहीं सुना, डी का सॉन्ग सी ने नहीं सुना, बाकी सबने सुन लिया. एंड लाइकवाइज ई का सॉन्ग एफ ने नहीं सुना, एफ का सॉन्ग ई ने नहीं सुना है. तो यहां पर मैं क्या करता हूं थोड़ा और चेंज करने के लिए, ए बी या ए सी अगले कॉन्सेप्ट में ए सी ई को सिंग करवाता हूं एंड बी डी एफ को लिसन करवाता हूं. एंड यहां पे उल्टा, बी डी एफ को सिंग करवाता हूं एंड ए सी ई को लिसन करवाता हूं. ठीक है, ठीक है. तो अगेन ए का सॉन्ग सी डी ई एफ ने सुन लिया, ए का सॉन्ग बी ने सुन लिया. बी का सॉन्ग सी डी ई एफ ने सुन लिया, बी का सॉन्ग ए ने सुन लिया. लाइकवाइज सी का सॉन्ग ए बी ई एफ ने सुन लिया एंड सी का सॉन्ग यहाँ पे डी ने सुन लिया. डी का सॉन्ग ए बी ई एफ ने सुन लिया, डी का सॉन्ग ए सी ई ने भी
डी का सॉन्ग ई ने भी सुन लिया एंड सो ऑन। तो यहां से क्या हुआ, वी बीन एबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉन्सर्ट्स बाय 1, दैट इज अब कॉन्सर्ट्स कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, वी स्टार्टेड विद अ वेरी ट्रिवियल केस, 6 तो हो ही है, 6 तो हो ही रहा है, दिख रहा है सबको। बट यहां पर मैंने जैसे ही किया कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 किया, वी बीन एबल टू रिड्यूस इट बाय 5। द पॉइंट इज कैन वी डू बेटर, कैन वी डू बेटर। 5 मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर लिया है, क्या मैं 4 कर सकता हूं, कैन आई डू 4, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम, द क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग टू माय माइंड, क्या n इज इक्वल टू 4 कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखो मैंने क्या किया, एक 5 एक ट्राई कर लिया, 2 वाले भी ट्राई कर लिए, 2 वाले से ये आया आंसर। क्या मैं और बेटर कर सकता हूं, कैन आई डू इवन बेटर, बिकॉज यहां पर देखो, मेरे को यहाँ पे 3 के करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज अगर मैं 2 करता तो शायद एक और बढ़ जाता। ठीक है, एक और बढ़ जाता, बिकॉज मुझे ए को बी से लिसन करवाना है एंड वाइस वर्सा, सी को डी से लिसन करवाना है वाइस वर्सा, ई को एफ से लिसन करवाना है वाइस वर्सा। तो मुझे यहाँ पे 3 इंट्रोड्यूस करने पड़े टू रिड्यूस, 6 से तो हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं 2 में करता तो 6 हो जाता। तो 5 मैंने कर लिया, कैन वी डू 4। अब 4 से ये दिखाई दे रहा कि वाई नॉट ट्राई 3, शायद, क्योंकि यहाँ पे 3 से शायद चीजें बढ़िया आसान होंगी। तो देखते हैं, ए बी सी अगर सिंग कर रहे हैं एंड डी ई एफ अगर लिसन कर रहे हैं, तो ए बी सी का सॉन्ग डी ई एफ ने कर लिया। अब देखें थोड़ा सा दिमाग लगाकर, ए का सॉन्ग डी ई एफ ने लिसन कर लिया, ए का सॉन्ग बी सी ने लिसन नहीं किया, तो बी सी को यहां डाल देते हैं। तो पहले एक एक करके सबको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ए का सॉन्ग डी ई एफ ने सुन लिया है, ए का सॉन्ग बी सी ने लिसन नहीं किया, तो बी सी को यहां डाल दिया। यहाँ पे और बाकी कंप्लीट करते हैं, बचे क्या, डी ई एफ, डी ई एफ। तो यहाँ पे डी ई एफ में इन 2 को, ई एफ को यहां ले लिया, ई एफ को यहां ले लिया, बिकॉज अगर मैं ठीक है, एक ही बात है, किन्हीं 2 को यहां ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, डी। ठीक है, अब यहां से क्या कंप्लीट हो गया, ए कंप्लीट हो गया, ए का सॉन्ग डी ई एफ और बी सी ने सुन लिया है, ए का सॉन्ग डी ई एफ बी सी ने सुन लिया है। अब बी देखते हैं, बी का सॉन्ग डी ई एफ ने सुन लिया, बी का सॉन्ग ए सी ने नहीं सुना, तो यहाँ पे बी डालो एंड यहाँ पे ए सी डालो, तो बी तो कंप्लीट हो गया। बी का सॉन्ग डी ई एफ ने सुन लिया, बी का सॉन्ग यहाँ पे ए सी ने सुन लिया, सो बी हैज बीन कंप्लीटेड। बचा क्या, डी ई एफ, डी ई एफ। अच्छा, यहाँ पे डी का सॉन्ग डी ने अभी तक गाया नहीं है, तो डी को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, डी को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड यहाँ पे ई और एफ कुछ भी ले आओ, लेट्स से यहाँ पे ई ले लेते हैं, तो यहाँ पर एफ आ गया, यहाँ पर एफ आ गया। तो यहाँ से 2 चीजें हो गई, एक तो बी, ए का कंप्लीट हो गया, यहीं पे बी का कंप्लीट हो गया, बी हैज कंप्लीटेड। ठीक है, बी का सॉन्ग डी एफ ने सुन लिया, बी का सॉन्ग यहाँ पे ए सी ने भी सुन लिया, सो बी इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब आते हैं सी के ऊपर, सी का सॉन्ग डी एफ ने सुना है, तो सी का सॉन्ग ए बी ने नहीं सुना। मैं चाह रहा हूं कि यहीं पर कवर हो जाए सब कुछ, आई वॉन्ट ये n इज इक्वल 4 लेकर आना, तो यहां पर कवर हो जाए, इसके ऊपर मुझे करना ना पड़े, तो सारी कंप्लीशन मुझे यहीं पर करनी है स्टेप में। तो सी का सॉन्ग डी एफ ने सुन लिया, सी का सॉन्ग ए बी ने, तो सी इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अच्छा, डी का सॉन्ग ए सी एफ ने सुना है, सो डी का सॉन्ग ए सी एफ ने सुना है, तो डी का सॉन्ग किसने नहीं सुना, एक तो बी ने नहीं सुना और एक ई ने नहीं सुना। डी का सॉन्ग ए बी, अगर यहां पर है ए बी सी ई एफ सब ने सुन लिया, सो डी इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अच्छा, ई का सॉन्ग अपने आप कंप्लीट हो गया, देखो ई का सॉन्ग ए बी सी डी एफ ने सुन लिया, तो ई इज ऑल्सो कंप्लीटेड। एंड यहाँ पे अगर एफ आ जाता है तो एफ इज ऑल्सो कंप्लीटेड, बी सी डी एंड ए बी एफ इज ऑल्सो कंप्लीट, सो वी हैव बीन एबल टू reduce it by 1 again, so n is equal to 4 definitely possible है, n is equal to 4 definitely possible है। ठीक है, सो मैंने कहां से शुरू किया, ट्रिवियल, ये सब रफ वर्क हो रहा है, दिस इज ऑल रफ वर्क व्हिच इज हैपनिंग, दिस इज नॉट फेयर, राइट। सो दिस इज ऑल रफ वर्क। तो मैंने ट्रिवियल सॉल्यूशन से शुरू किया, 6 था, 5 पे रिड्यूस कर दिया, फिर मैंने दिमाग लगाया कि 4 हो सकता है, 4 भी कर लिया। अब दिल तो ग्रीडी है, तो मैं चाहूंगा कि यार अगला क्वेश्चन है कि क्या 3 पॉसिबल है, इज 3 पॉसिबल, बिकॉज 3 में क्या करना पड़ेगा, शायद 4 यहां करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, 2 यहां पे करना पड़ेगा, तो बात तो वही आ गई, ये वाली आ गई। ठीक है, 4 यहां पे 2 यहां पे, बात तो है, अगर पूरी की पूरी चीज यहां पे कर दो, ये वाली पूरी यहां पे कर दो, तब भी 5 ही हो रहे हैं। तो यहां से फील तो आ रही है कि n इज इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो आंसर फॉर एग्जाम्पल मुझे दिख गया है, आंसर इज n इज इक्वल टू 4, 4 का कॉन्सेप्ट है, 4 मिनिमम कॉन्सेप्ट्स होंगे एंड ये मैंने कंस्ट्रक्ट भी करके दिखा दिया। बट अगर तुम सिर्फ यहां लिखते हो कि दिस इज द पॉसिबल सोल्यूशन एंड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर n इज इक्वल टू 4, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स, शायद इसके 1 2 3 मार्क्स होंगे 17 में से। एंड दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक इवन आफ्टर
finding the answer, they feel that their answer is correct and they should be getting marks, but they don't get marks because they have not justified that ये मिनिमम है, जस्टिफाई नहीं किया, ठीक है, ये जस्टिफाई नहीं किया कि n is equal to 3 नहीं हो पाएगा, मिनिमम 4 होगा। तो अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर देता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी 4 एंड हैव कंस्ट्रक्टेड 4, देन माय आंसर इज कंप्लीट। So how do I justify this? How do I justify this? Right? So the next question is n is equal to 3 possible? And we've already seen and I already felt कि maybe not. It is not possible because देखो 3 ऑप्टिमल था, उसके बाद 4 करूंगा तो 4 करूंगा तो यही चीज आएंगी ना, ये वाली चीज यहां पर हो जाएगी, ये वाली चीज यहां हो जाएगी, तो उसमें तो 5 आ रहा है, ठीक है। तो मे बी n is equal to 3 is not possible, but how do we prove? ठीक है, तो अब जो अगली 2 स्लाइड में करने वाला वो रियल सोल्यूशन है एंड उसी के ही मार्क्स हैं, ठीक है। यहां तक अगर तुम लिखोगे 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 70, नॉट मोर देन दैट, इवन इफ यू फाउंड द राइट आंसर। सो दिस इज द प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे बच्चे रियलाइज नहीं करते हैं, बिकॉज वो आईओ के माइंडसेट से पेपर देते हैं कि वी हैव टू फाइंड द आंसर, या जी माइंडसेट से पेपर देते हैं फाइंडिंग द आंसर। फाइंडिंग द आंसर इज ओके, बट अगेन यू हैव टू जस्टिफाई दैट दिस इज द आंसर, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, सो हाउ डू वी डू, किस तरीके से, ठीक है। अब प्रूफ क्या है, whenever one musician listen to the other musician, कभी भी जब कोई भी एक म्यूजिशियन दूसरे म्यूजिशियन को लिसन कर रहा है, we call it a success, ठीक है। अगर A B को लिसन कर रहा है तो एक सक्सेस है, सिमिलरली अगर B A को लिसन कर रहा है एक सक्सेस है। A अगर B C को लिसन कर रहा है तो ये 2 सक्सेसेस हैं, A B को भी लिसन कर रहा है, A C को भी लिसन कर रहा है, सो ये 2 सक्सेसेस हैं। Now there are 6 musicians, since each of the 6 musicians have to listen to each of the other 5, ठीक है। Each of these 6 musicians have to listen to each of the other 5, तो A ने बाकी सबको लिसन करना है, B ने बाकी सबको लिसन करना है, बाकी 5 को, C ने बाकी 5 को लिसन करना है, D ने बाकी 5 को लिसन करना है, E ने बाकी 5 को, F ने भी बाकी 5 को लिसन करना है। So ultimately we need at least 30 different successes, हमें 30 different successes चाहिए, ठीक है। तुम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी बोल सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। So we call it an ordered pair AB is a success if A listens to B. If A listens to B, then AB is done. Similarly, we हमें BA भी चाहिए, BA भी चाहिए wherein B is listening to. So again, we need 30 such ordered pairs. तो इसको तुम ordered pair की फॉर्म में कर सकते हो, इसको तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, but again किसी भी तरीके से करो, ये जस्टिफिकेशन करना जरूरी है। So we need at least 30 different successes चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। हम एक टेबल बनाते हैं कि अगर सिंगर्स 1 हैं और लिसनर्स 5 हैं, तो उस सिनारियो में कहने से हमें 5 सक्सेसेस मिलेंगी एक ही कॉन्सेप्ट में। अगर नंबर ऑफ सिंगर्स 2 हैं और नंबर ऑफ लिसनर्स 4 हैं, तो उसमें हमें उस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में जहां पर नंबर ऑफ सिंगर्स 2 हैं एंड नंबर ऑफ लिसनर्स 4 हैं, देयर आर 8 सच सक्सेसेस, ठीक है। बहुत ऑब्वियस बात है ना, अगर ए बी लिसन कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं एंड सी डी ई एफ आर लिसनिंग, देन देयर आर 8 सक्सेसेस, ए सी ए डी ए ई ए एफ बी सी बी डी बी ई बी एफ। 3 and 3 में देयर आर 9 सक्सेसेस, 4 and 2 में अगेन 8, 5 and 1 में 5 एंड 6 सिंग कर रहे हैं, कोई भी लिसन नहीं कर रहा तो एक भी सक्सेस नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये वाला केस तो हम ऑप्टिमल मिनिमम के लिए ये तो केस करेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, सिंगिंग का मन है तो जितना मर्जी करते रहो, बट अगेन वी वांट मिनिमल कॉन्सेप्ट्स, तो ये तो पॉसिबल, मतलब शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने टेबल बना लिया कि हर कॉन्सेप्ट में जब भी x नंबर सिंग कर रहे हैं एंड 6 - x लिसन कर रहे हैं, तो कितनी सक्सेसेस हमें चाहिए होंगे। अब यहां पर इट कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। फॉर ईच कॉन्सेप्ट देयर आर मैक्सिमम 9 डिफरेंट सक्सेसेस, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 सक्सेसेस हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। 9 डिफरेंट सक्सेसेस किसी भी एक कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम मिलेंगी, मैक्सिमम एक कॉन्सेप्ट में 9 डिफरेंट सक्सेसेस मिलेंगी। और हमें कितनी चाहिए? 30 चाहिए। तो अगर मैं 9 into 3 करता हूं, 9 + 9 + 9, 3 कॉन्सेप्ट्स सोचता हूं कि यार 3 कॉन्सेप्ट्स होंगे, सो 9 + 9 + 9 is 27, हमें 30 चाहिए। इसका मतलब 3 कॉन्सेप्ट्स आर नॉट पॉसिबल, इवन इफ आई अज्यूम कि सब जगह 9 चल रही है, एंड इफ लेट्स से वी अज्यूम दैट दिस इज पॉसिबल इन 9 पॉसिबल 9 इस तरह के इंटरेक्शंस के अंदर ये पॉसिबल है, तो 3 में तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट के अंदर 9 मिल रही है तो 3 कॉन्सेप्ट में 27 मिलेंगे, बट हमें कितनी चाहिए? हमें 30 सक्सेस चाहिए, हमें 30 ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए, राइट? सो दैट मींस n is equal to 3 is not possible. This is the justification. ये लिखना है, ये करना है, ये जस्टिफाई करना है, ये प्रूफ करना है, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, इवन इफ
your answer is right. And this is something which has been happening. बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा 2024 में and 2023 के अंदर. अगर हुआ है अपने कमेंट में लिख सकते हो. When you found the answer was right but still not got marks, it was because of this justification that you did not do. Okay, so that means 3 concepts possible नहीं है, because अगर 3 concepts possible है, maximum तो 9 है. 27 मिलेंगे maximum. वो भी कैसे मिलेंगे पता नहीं, but 27 मिलेंगे. हमें तो 30 चाहिए. So 3 तो possible है, तो 4 तो होना ही पड़ेगा. और 4 के हमने already प्रूव कर दिया है, कंस्ट्रक्ट कर दिया. तो फॉर 4 कॉन्सेप्ट्स, इफ द सिंगिंग एबीसी डीएफ, तो यहां पर हमने जस्टिफाई कर लिया जैसे पुराना कंस्ट्रक्शन किया था कि एवरीवन इज एबल टू लिसन टू एवरीवन सॉन्ग्स इन 4 कॉन्सेप्ट्स एंड दिस कंप्लीट्स द एंटायर थिंग. तो अगर यहां तक लिखोगे तब तुम्हें पूरे 17 आउट ऑफ 17 मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज ये दिस would consist of the majority of the marks. This justification is something that you need to write. तो इस तरह की गलती मत करना, इस तरह की चीजों सोच के आना. And justification is much more important than finding the answers in RMO. I hope this is clear to everyone. Okay, so that's it. Hope you've enjoyed this and make sure you like and also subscribe to this particular session. इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हमारे व्यूअर्स कैंप के अंदर चल रहे हैं. ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. फर्स्ट फेज वाज ऑलरेडी स्टार्टेड. द सेकंड फेज इज ऑनगोइंग. इट स्टार्टेड फ्रॉम 27th of October. अगर तुम अभी भी ज्वाइन करते हो तो पुराने सारी क्लासेस तुम्हें रिकॉर्डिंग की फॉर्म में मिलेंगी. ऑफ कोर्स लाइव तो चली रही हैं. सो 6 days a week the classes are going on at 9 p.m. to 10:30. Even if you're not able to attend them live, you can always see the recordings. It is free of course for all the students who have qualified to write RMO 2025. Okay, so these kind of things are being done. So there's a Google form which is there in the description box. You need to fill the form and you will be enrolled in 24 to 48 hours. All the details are there in the form. All right, so that's it from my side. Hope you've enjoyed this session and make sure you subscribe and also like this session. This is my Telegram ID. Those who want to get in touch with me, they can at this Telegram ID. Take care. God bless you. Bye everyone.